So we started with the final accounts and the we understood the computation of interest on capital, right? Interest on capital is calculated like on opening capital for 12 months, right? Then on additional capital, right? On additional capital from the date of addition till the year end. And the third, right? If there is a withdrawal of capital, right? On that withdrawal, right? We deduct interest from the date of withdrawal till the year ends. So that is your calculation of interest, right? On capital. कैसे कैलकुलेट करते हो? फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा भी था, on opening capital for the entire year, then right on additional capital from the date of addition till the year end, and we will subtract interest on withdrawal of capital from the date of withdrawal till year ends. Let's see now. मैंने एंट्रीज लिख के दी थी क्या? यस, मैंने एंट्रीज भी लिख के दी थी, राइट? सो लिख लेना यहां पे एंट्रीज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फर्स्ट एंट्री बीइंग एक्सपेंस डेबिट किया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. First find out the interest and then pass the entry. So I mean I add in expense and I will add in capital. In simple words, capital को क्रेडिट कर रहा हूं ना, कैपिटल को क्रेडिट कर रहा हूं ना, तो I will say add in capital. Second, transfer the interest to P&L. एंट्री रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. 2, interest on capital account. P&L account debit to interest on capital. Reality में this should not be P&L account. This should be extension to P&L which is called as P&L appropriation. आपको इतना पता है 11th में हम ट्रेडिंग एंड P&L करते थे, इतना तो पता है सबको. द अपर पोर्शन इज ट्रेडिंग, बिलो पोर्शन इज P&L, बराबर. एंड एक्चुअल में इसके बाद भी एक अकाउंट होता है पार्टनरशिप में, इसके बाद भी P&L के बाद भी एक अकाउंट रहता है. सो अब सबसे ऊपर रहेगा ट्रेडिंग, फिर ये आएगा P&L एंड ये आएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो महाराष्ट्र बोर्ड कंसीडर नहीं करता है. सो P&L के बाद भी एक अकाउंट रहता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड दैट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट. हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L के डेबिट में डालते हैं 12th महाराष्ट्र बोर्ड में. एक्चुअल में दिस शुड बी डेबिटेड टू P&L appropriation account and not to P&L account, but we straight away ignores P&L appropriation. ठीक है, आगे जस्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट आगे. ठीक है, और कल उस दिन मैंने इफेक्ट भी बोले. इन फाइनल अकाउंट्स एड इन एक्सपेंस P&L के डेबिट में डालेंगे, एंड सेकंड इफेक्ट रहता है एड इन कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में डालेंगे. ठीक है, सो ये इफेक्ट रहेगा. टेक एन एग्जांपल, आप सॉल्व करो. मैं एक एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल 1,
जो भी कंटिन्यूशन में चल रहा है. एग्जाम्पल, Ram had capital of rupees 5 lakhs on 1st April 19. He introduced capital of rupees 2 lakhs on 1st July 19, and he gave his car to business valued at 1 lakh or valued at 3 lakhs ले लो, on 1st October. ठीक है. Calculate interest on capital at the rate of 10% per annum. Right? You have 5 minutes to calculate it. And right? चलो करो जल्दी. What time starts now? करो. थोड़ा ठीक से करो. Ping me the answer.
Okay, 80. What is second part of the question? इसमें अब क्या सेकंड पार्ट चाहिए भाई? कोई लोग 55,000 लिख रहे हैं, देखते हैं. So answer is, let me find it out. ठीक है. देखते हैं. So can I say solution? ये बहुत अच्छे से आना चाहिए. हर चैप्टर में है. You have to in each every chapter हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब कैलकुलेट करना है. हर चैप्टर में रहेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. सो ऑन ओपनिंग कैपिटल, on opening capital for 12 months for the entire year, opening capital 5 lakhs tha, at the rate of 10%, 12 by 12, so that is 50,000 on additional capital. From date of addition till year ends, till year ends. अच्छा कितना है बोलो? एडिशनल कैपिटल 2 है. He introduced rupees 2 lakhs on 1st July. Capital can be brought in cash or in kind, right? 11 की फर्स्ट एंट्री होती थी, बिल्डिंग ब्रॉट इन, व्हीकल ब्रॉट इन, स्टॉक ब्रॉट इन, दैट इज टू बी कैपिटल. सो 2 lakhs पे at the rate of 10%. फॉर कब ऐड किया? 1 सितंबर को ना? नहीं, 1 जुलाई से ईयर एंड 9 मंथ्स आता है. सो दैट विल बी 20,000 का 3/4. 9 by 12 मतलब 3/4. 9 by 12 3 months मतलब 1/4. 6 months मतलब half. 9 months मतलब 3/4. And 12 months मतलब 1 by 1, that is 1. So 3/4. 20,000 का 3/4. 4 हिस्से करो 20,000 के. 2 lakhs का 10% comes 20,000. उसके 4 हिस्से करने. 20 के 4 अगर डिवाइड करते तो 5,000 का हिस्सा आएगा. 15,000. You are not supposed to use calculator in exam, so आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो समझा रहा हूं. And you have also added 3 lakhs at the rate of 10% for 6 months, अक्टूबर से मार्च. 3 lakhs का 10%, 30,000. लास्ट डिजिट राइट करो. 6 months मतलब हाफ. 30,000 का हाफ 15,000. आंसर इज 18,000. 80. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 80,000. इंट्रीज लिखो. फर्स्ट, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं आती है. ओपनिंग बैलेंस 5 lakhs था. देन 1 सितंबर को या 1 जुलाई को कैपिटल आया इन कैश. कैश अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं लिखा मतलब कैश रहेगा. कैश अकाउंट डेबिट कितना? 2 lakhs था ना वो? यस, 2 lakhs. कैश अकाउंट डेबिट 2 lakhs. 2 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 lakhs बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन. फिर 1 अक्टूबर को एक और कैपिटल आया. ही ब्रॉट व्हीकल, कार. व्हीकल अकाउंट डेबिट. उसने 3 lakhs का कैपिटल लाया एडिशनल. 2 कैपिटल 3 lakhs बीइंग पर्सनल व्हीकल ब्रॉट इनटू द बिजनेस. फिर 31 मार्च को जब ईयर खत्म होगा, we have calculated interest which is 80,000 and interest is interest on capital expense, debit होगा. interest on capital account debit. 2 capital account credit 80.
And last, this interest on capital is transferred to profit and loss account. Being nominal account, we have to close it at the end of the year. 80 to capital 80. बाकी भी कैपिटल के एडजस्टमेंट से अभी हम खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर है? दिस इज योर आंसर. लिख लेना एंट्रीज. अच्छा, ये वीडियो 1 मिनट बंद करता हूं तो दिखेगा आपको. देखो किस, आई डोंट नो ये 47,500 कैसे आया. लिटरली मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहां से आया वो. उसके बाद और किसी ने आंसर दिया है, लेट मी चेक. ये 55,000 है किसी का. आई डोंट नो ये 55,000 आया कैसे. ठीक है, गुड. चलो लिखो आगे. एक और एग्जांपल करेंगे एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, ये दो कंसेप्ट बहुत अच्छे से आनी चाहिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट, एड इन एक्सपेंस, एड इन कैपिटल, बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस होता है और कैपिटल में ऐड होता है. ठीक है, लास्ट एग्जांपल ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. ठीक है, अच्छा लास्ट एंट्री बोलनी है क्या? अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस. एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द ईयर कहां पे डालते हो आप? पी एंड एल में डालते हो ना. इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसका डेबिट पी एंड एल को डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट किया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज हो जाएगा एंड वो किस में चला जाएगा? पी एंड एल में जाएगा, पी एंड एल के डेबिट में आएगा. ठीक है, सो इसके इफेक्ट वही तो मैं समझ रहा हूं. पी एंड एल के डेबिट में जाएगा, फाइनल अकाउंट्स करते टाइम वो पी एंड एल के डेबिट में जाएगा एंड कैपिटल में ऐड होगा. Nominal accounts are closed by transferring their balances to P&L account. ठीक है, last example before we move to the next concept. Example, A and B are the partners. A and B are the partners sharing profits and losses. इक्वली, जो भी रहेगा वो इक्वली शेयर करेंगे. जो भी रहेगा मतलब प्रॉफिट्स, लॉसेस भी रहेंगे तो इक्वली, प्रॉफिट भी रहेंगे तो इक्वली. यू हैव टू यूज ब्रेन ना, ऐसे नहीं है. देयर कैपिटल as on 1st April 19, A and B. A का कैपिटल 1 लाख, B का कैपिटल 1,50,000. एडिशनल कैपिटल A 1st October 19 rupees 50,000. B 1st January 20 rupees 50. दोनों ने 50-50 डाला. ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, do not consider drawings for the purpose of calculation of interest on capital. मैं ड्राइंग्स जानबूझ के लिख रहा हूं. डोंट कंसीडर ड्राइंग्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल पे इंटरेस्ट आता है वो अलग एंड ड्राइंग्स का अलग रहता है. ड्राइंग्स या ठीक है, फिर कंफ्यूजन होगा, मैं अलग से लेता हूं. 1 मिनट. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, a firm is rupees 3 lakhs, right? Interest on capital is 12% per annum.
Find out A, interest on capitals. B, capital balances of A and B. You have to solve it. ये मैं आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा देता हूं. You have to use brain. करो स्टार्ट. ठीक से करना है. नहीं आता तो मैं डोंट वरी, ट्राई करो. जो प्रॉफिट दे ना दैट इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना. ये 3 लाख प्रॉफिट विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. और हमें जो भी प्रॉफिट रहेंगे हमें उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. तो कैपिटल ढूंढो.
अच्छा, बहुत लोगों के आंसर आए। कैपिटल बैलेंस ऑफ ए इज 0। अच्छा, ए का 0 कैसे आएगा? कैसे पॉसिबल है रे कैपिटल 0 रहे? मैडम, सिद्धि मैडम, कैसे कैपिटल 0 रहेगा? कैपिटल निगेट 0 कैसे? कैपिटल 0 कब होगा? सब विड्रॉ किया तब ना। देखते हैं, ठीक है। देखो, मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूं सॉल्यूशन। सबसे पहले ढूंढा जाएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए एंड बी, देखो मैं कैसे निकालता हूं। ऑन ओपनिंग कैपिटल कितना ओपनिंग कैपिटल है? 1 लाख, 1,50,000। इसका 1 लाख है एट द रेट ऑफ 12% रेट फॉर 12/12, जो आ जाएगा 12,000। इसका कितना है? 1,50,000 कैपिटल है एट द रेट ऑफ 12% अगेन फॉर 12 months, that will be 18,000। on additional capital, on additional capital देखते हैं एडिशनल कैपिटल कितना है। इसका 50,000 है, दोनों का 50,000 है। मल्टीप्लाई बाय रेट तो सेम रहेगा, रेट थोड़ी चेंज होगा, बट पीरियड अलग अलग है। इसने 1 अक्टूबर को डाला है, अक्टूबर से मार्च। ऑलवेज रिमेंबर 30 सितंबर या 1 अक्टूबर मिड ईयर होता है। 30 सितंबर या 1 अक्टूबर मिड होता है, मिड, बिकॉज हमारा अप्रैल से मार्च ईयर होता है। अब डेट पता होनी चाहिए। जून एंड 1st क्वार्टर खत्म होता है, अक्टूबर सितंबर एंड 2nd क्वार्टर खत्म होता है, दिसंबर एंड 3rd क्वार्टर खत्म होता है, एंड मार्च एंड ईयर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर 6 months एंड ये 3 months के लिए, जनवरी फरवरी मार्च। 1 दिसंबर को एडिशनल कैपिटल आया, जनवरी फरवरी मार्च 3 months। सो 50,000 पे 12% फॉर 6 months, इतना निकालने से आप डायरेक्टली 12% मतलब क्या पता है? 1% पर मंथ। तो इफ यू डायरेक्टली फाइंड आउट फ्लैट 6% तो भी आंसर आ जाएगा। 1% रहेगा 6,500 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 3,000 रहेगा। इसका रहेगा 1,500। जब भी 12% पर एनम रहता है ना, इसका मतलब इट इज 1% पर मंथ। इफ इट इज फॉर 6 months इट विल बी 6%। तो आप 1% मतलब लास्ट के 2 डिजिट ऐड करने के और मल्टीप्लाई बाय 6 किया, यू विल गेट द आंसर। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान देना, इसका 15,000 है और इसका 19,500 है। पहले चेक करो ये बराबर है या नहीं है, पहले ये चेक करो बराबर है या नहीं है। चेक करो मैंने आंसर कैसे निकाला है, इज इट करेक्ट और नॉट, ये पहले कंफर्म करो, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट। अब ध्यान देना, देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले के प्रॉफिट। उन्होंने बोला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3 लाख। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3 लाख लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना, बी का कितना? ए का 15,000, बी का 19,500। Therefore, total interest on capital expense is 500 for 1 carried 2 3। 34,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट माइनस करो, यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट. देयरफॉर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट. which is 3 लाख से अगर 34,500 माइनस करते हो दैट विल बी 2,65,500. चेक करो. यस 1 कैरिड 10 1 कैरिड यस. इतना बचेगा इंटरेस्ट देने के बाद, इतना बचेगा. इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट 3 लाख था, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर एक्सपेंस 3 लाख था. फिर एक्सपेंस माइनस किया, तो एक्सपेंस माइनस होने के बाद कितना प्रॉफिट है? 2,65,500. and this profit will be distributed between A and B. A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा? A शेयर, B शेयर. %50 50%. So can I say कितना आएगा? कोई मुझे बोलेगा कितना आएगा? Anyone? अरे मैडम व्हाई आई टेक 3 months? मैडम डेट क्या है, कब मैंने ऐड किया है? पढ़ो जरा. एक सेकंड, लेट मी हाईलाइट द डेट. 1 जनवरी 20 को 50,000 डाला, 1 अक्टूबर 19 को 50,000 डाला. तो ये ऑब्वियसली डेट अलग अलग है. ये 9 मंथ्स के लिए, ये 6 मंथ्स के लिए रहेगा और नीचे का 3 मंथ्स के लिए रहेगा. डेट देखो ना, समझा? आगे नेक्स्ट. देयरफॉर इसको डिवाइड करने पड़ेगा. 2,65,500 को हम डिवाइड करेंगे, 2,65,500 को हम 2 से डिवाइड करेंगे. हाफ ए का रहेगा 1,32,750, बी का रहेगा 1,32,750. देयरफॉर कैपिटल बैलेंसेस ढूंढने. ए का कितना है, बी का कितना है? ओपनिंग कैपिटल्स. ए का कुछ तो 1 लाख है, बी का कुछ तो 1,50,000 है. एड एडिशनल कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है. एडिशनल कैपिटल, ए ने 50,000 दिया, बी ने 50,000 दिया, प्लस प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है. ए का प्रॉफिट 1,32,750, बी का प्रॉफिट 1,32,750. सो इसका टोटल कैपिटल हो गया मेरे हिसाब से 2,82,750. इसका हो गया 3,32,750. दिस इज द आंसर. मैं चेक करता हूं किसी ने बराबर लिखा है क्या. यस पर वो अच्छा देर इज ओके. चल किसका क्वेश्चन है? हाँ यस प्लीज ओंकार. हाँ बोल. ओंकार शिंदे. ठीक है देखते हैं. किसी एक ने आंसर बराबर दिया, किसी ने ये किस राइट. कैपिटल इज 2,85,000 3,39,500. ये रॉन्ग आंसर है. जिसने दिया है वो. ओके लेट मी चेक. ठीक है डेट में गलती हुई. 1,32,000 नहीं पता, ये वेंकट का रॉन्ग है. 2,97,000 नहीं कुछ तो गलत है. मैंने रेट 12% दिया है. मेरा रेट 12% है. ठीक है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं. सो ऑलवेज रिमेंबर बिफोर एंड आफ्टर में फर्क क्या है. जब मैंने लिखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट माइनस किए हुआ, मैंने माइनस नहीं, बिफोर
मतलब वो होने के पहले, फिर इंटरेस्ट माइनस करो और फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। बिकॉज मैंने क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस। अगर आपने प्रॉफिट विदाउट एक्सपेंस लिया है तो प्रॉफिट रॉन्ग है, तो 3 लाख नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने, 3 लाख से इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा और जो बचेगा वो पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है, सो दिस इज वन कंसेप्ट। नाउ वी विल मूव टू अनदर कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ गलत आ गया वो सोचो। ठीक है, हाँ बोलो रे। सर हाँ यस प्लीज। सर हमने इंटरेस्ट ऐड नहीं किया। एक सेकंड, हाँ बोल। सर कैपिटल जो लास्ट में आया ना, इसे इंटरेस्ट ऐड नहीं करना है। ओह, लिया नहीं क्या हमने, सॉरी सॉरी, प्लस, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, परफेक्ट है, आना चाहिए, ऐड होना चाहिए, बराबर है। तो कितना है बोल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी 15,000, इसका 15,000 ऐड होगा और इसका ऐड होगा 19,500, परफेक्ट। वो ऐड होना चाहिए, वो टी फॉर्म में नहीं निकाला इसलिए क्लिक नहीं हुआ मुझे। ठीक है, ये क्लोज कर दो, फिर ये ऊपर ले लो। हाँ, तो अब आंसर बोल कितना है फाइनल। सर ए का आता है 3,97,750। ए का इतना नहीं आएगा रे, 3,99 पे कैसे जाएगा। 2,97,297। हाँ 2,97,750। हाँ, और इसका कितना आ जाएगा अब। 3,52,250। नहीं, आवाज नहीं आ रही तेरी। हाँ, सर बी का 3,52,250। ओके, लेट मी चेक। 3,52,250, परफेक्ट है। ये मैं ऐड करना भूल गया, ये ऐड होना चाहिए ना ऑब्वियसली। आगे उधर रेक्टिफाई कर लो, जिन्होंने आंसर अभी कॉपी किया है वो नीचे ऐड कर दो। ये ऐड होना चाहिए ऑब्वियसली ना। ऐड हम क्या करते हैं, ऐड इन एक्सपेंस, ऐड इन कैपिटल। ओके गुड, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन, राइट, इंटरेस्ट ऑन योर ड्रॉइंग्स लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखो। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, दिस इज बिजनेस, दिस इज ओनर, बिजनेस एंड ओनर। ओनर जब कैपिटल देता है तो ओनर उसमें इंटरेस्ट लेता है ना। जब ओनर बिजनेस को पैसा देता है कैपिटल, तो उसपे वो क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है। कभी कभी उल्टा भी होता है ना, क्या उल्टा होता है, ओनर विड्रॉज प्रॉफिट्स फॉर हिज पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स। सो ओनर बिजनेस के पैसे उठाता है पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। अब जब ओनर के पैसे हम यूज कर रहे हैं तो ओनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं। जब ओनर हमारे पैसे यूज करेगा तो हम उसको इंटरेस्ट नहीं देंगे। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। जब ओनर हमारे पैसे यूज करेगा तो हम उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, लगाएंगे, लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, रीजन समझ लेना। ही इज यूजिंग आवर फंड्स। अगर वो पैसे बिजनेस में होते तो हम उस पे इंटरेस्ट कमाते, हम उस पे प्रॉफिट और कमाते। देखो, बिजनेस का पैसा अगर बिजनेस में यूज होता है तो उससे प्रॉफिट और इंक्रीज होगा, बट वो पैसा ओनर उसके पर्पज के लिए यूज कर रहा है तो बिजनेस भी सैक्रिफाइस कर रहा है, बिकॉज बिजनेस का पैसा कोई दूसरा यूज कर रहा है, इसमें बिजनेस का लॉस हो रहा है। तो बिजनेस नीड्स कंपेंसेशन। बिजनेस, जैसे ओनर ने बिजनेस को बोला था कि तूने मेरा पैसा यूज कर रहा है एज ए कैपिटल, तो तू मुझे इंटरेस्ट दे, वैसे बिजनेस ओनर को बोलेगा एज यू आर यूजिंग आर मनी फॉर योर पर्सनल यूज, जो ड्रॉइंग्स कहलाता है, उस पे हम तेरे पे इंटरेस्ट लगाएंगे। सो बिजनेस चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग्स ऑफ द ओनर and that is the income of the business. Interest on capital is expense of the business, interest on drawings is the income of the business. So लिख लेना। एंड लॉजिकल है यार, ये बहुत
दिस इज वेरी लॉजिकल. व्हाई? बिकॉज अगर वो पैसा हमारे पास रहता, बिजनेस में रहता, तो हमने और बिजनेस में के लिए कोई गुड्स और परचेस किए होते हैं, हमने फिक्स एसेट परचेस की होती, हमने वो पैसे एफडी में रखे होते हैं, तो उस पर बिजनेस का फायदा होता. बट वो पैसा वो लेके जा रहा है, इसलिए हमारा वो फायदा नहीं हो रहा है. तो हमें कुछ तो कंपेंसेशन चाहिए. हम ओनर को बोलेंगे, भाई अगर ये पैसा तू किसी और से लेता, तुझे इंटरेस्ट देना पड़ता ना. तो अगर तू हमसे ले रहा है तो हमें क्यों नहीं इंटरेस्ट दे रहा है? चल बाकी लोगों को तुझे 10% देना पड़ता, तू बिजनेस को 6% तो दे दे. Are you getting my point? And therefore, try to understand. Interest on drawings is income of the business. ध्यान देना. आगे लिख लेना. This is very important note. Note a calculation of interest on drawings. Any interest, फिर वो कैपिटल हो, लोन हो, ड्रॉइंग्स हो, कोई भी इंटरेस्ट ऑलवेज विथ कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. कैलकुलेशन. Interest on drawings is calculated with respect to the period of drawings. कितने मंथ्स आपने ड्राइंग्स किए? पीरियड ऑफ ड्राइंग्स. पीरियड ऑफ ड्राइंग्स कितने मंथ्स यूज किया है? इफ आई यूज, आपने अगर 6 मंथ्स के लिए बिजनेस का पैसा यूज किया है ओनर ने, तो बिजनेस विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स. अगर उसने 9 मंथ्स के लिए यूज किया है, तो बिजनेस विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 9 मंथ्स. देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस इन ड्राइंग्स. देयर इज नेवर ए ओपनिंग बैलेंस इन ड्राइंग्स, बिकॉज at the end of every year I transfer drawings to capital, means I deduct it from the capital. जितने भी साल भर के ड्राइंग्स रहेंगे हम कैपिटल से माइनस करते हैं at the end of the year, and therefore there is no balance in drawings. So opening drawings पे 12 मंथ्स का ऐसे कुछ कंसेप्ट नहीं होता. कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस रहता है, ड्राइंग्स में ओपनिंग बैलेंस नहीं होता. ठीक है? बिकॉज एवरी ईयर के एंड में हम ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस करते हैं एंड ड्राइंग्स क्लोज कर देते हैं. लिख लेना. Note, if dates of drawings are not given, then interest on drawings is always calculated for 6 months. अगर उन्होंने हमें डेट्स ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिए, तो वी एज्यूम ड्राइंग्स इज एट द एंड, मिड ऑफ द ईयर और मिड ऑफ द पीरियड, इसलिए हम 6 मंथ्स के निकालते हैं. दिस इज 1 मार्क एमसीक्यू, बहुत बार आता है. fill in the blanks, right? और MCQs, right? 3 में से एक ढूंढना है वगैरह उसमें. For how many months? 6 months. This is standard assumption. वो assumption क्यों है? Right? वो भी मैं चाहिए तो लॉजिक समझा दूंगा. Why it is 6 months? But अगर डेट्स दिए हैं तो ऑब्वियसली हम डेट वाइज इंटरेस्ट निकालेंगे. बट अगर डेट्स नहीं दिए क्वेश्चन में, तो हम 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे. एज सिंपल एज दैट. एग्जाम्पल, A and B are partners with PSR, profit sharing ratio. Profit sharing ratio 3:2. What is 3:2? अगर 5 रुपए प्रॉफिट होते हैं तो 3 A को मिलेंगे, 2 रुपए B को मिलेंगे. 10 रुपए प्रॉफिट होते हैं तो 6 A को मिलेंगे, 4 रुपीज B को मिलेंगे. अगर एग्जाम्पल 50,000 का प्रॉफिट होता है, 50,000, 30,000 A को मिलेगा, 20,000 B को मिलेगा. ठीक है?
PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे ठीक है, देयर ड्रॉइंग्स are, they have given you drawings. A, rupees 10,000 on 1st July 19, rupees 5,000 on 1st October 19, रुपीज कितना ले लू 15,000 on 1st December 19. B, इसके टोटल ड्राइंग्स कितने हो गए 30। बस अमाउंट लिखिए, डेट नहीं पता है, बी ने कब ड्रॉ किया पता नहीं है, ए का हमें पता है, टोटल ड्रॉइंग्स ऑफ ए 10 plus 5 15, 15 plus 15 30, ए ने टोटल 30,000 ड्रॉ किए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। when a owner withdraws money for personal use, एंट्री होती है ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू बैंक। समझ में आ रहा है? सो दे हैव नॉट गिवन यू 1st December, it is not 1st January, 1st December, 4 months, December, January, February, March, 4 months। ठीक है, आगे ड्रॉइंग्स की एंट्री आती है ड्रॉइंग्स टू कैश, एंड फिर ड्रॉइंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल टू ड्रॉइंग्स एंट्री आती है। ध्यान देना, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स, on their drawings, sorry I should not say capital because हम drawings कर रहे हैं ना, interest on their drawings at the rate of 6% per annum, 6% per annum। solution ठीक है, देखते हैं। नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लो। ए ए के केस में कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए, देखते हैं ए की ड्राइंग्स कितनी है, 10,000 की ड्राइंग्स है। कब ड्रॉ किए उसने, 1st सितंबर, 1st जुलाई। ए ने 1st जुलाई को पैसे विड्रॉ किए उसके यूज के लिए बिजनेस से, तो उसने वो 10,000 कितने मंथ्स यूज किए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स। तो हम बोलेंगे तूने 10,000 विड्रॉ किए, 6% रेट है, उस पे 9 मंथ्स के इंटरेस्ट दे, प्लस फिर उसने 5,000 ड्रॉ किए। कब ड्रॉ किए, अक्टूबर, 1st अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स के लिए, तो उस पे हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे। वो कितने दिन, हमारे 10,000 कितने मंथ्स यूज किए उसने, 9 मंथ्स, 5,000 कितने मंथ्स यूज किए, 6 मंथ्स, जितने मंथ्स यूज किए उतने मंथ्स इंटरेस्ट लगाएंगे। एंड 15,000 15,000 उसने कितने मंथ्स यूज किए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ्स यूज किए, 4 मंथ्स के लिए। 3 ड्रॉइंग्स है, 3 बार इंटरेस्ट दूंगा। फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स टिल द ईयर एंड, ऑलवेज रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द पीरियड ऑफ ड्रॉइंग्स, दैट इज लिख लेना, फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग till year ends।
टिल ईयर एंड, जिस दिन ड्रॉइंग की वहां से ईयर एंड तक। ठीक है, आगे। हाँ, टोटल कितने इंटरेस्ट आ जाएगा बोलो? दैट विल बी 10,000 का 6%, 600 रहेगा। 10,000 का 6% 600 रहेगा, बराबर। हमें 9 मंथ्स के लिए निकालना है। 9 मंथ्स मतलब 3/4, 600 के 4 पार्ट्स करने हैं। 600 के 4 पार्ट्स, 150 150 150 150, उसमें से 3 चाहिए, 450 प्लस 5,000 का 6% इज 300। 5,000 का 6% इज 300। हमें 6 मंथ्स के लिए चाहिए, तो हाफ ईयर के लिए चाहिए। 300 का हाफ 150 प्लस यहां पे 15,000 का 6% आता है। 15,000 का 6% आएगा 900। 150 मल्टीप्लाई बाय 6, 900 आएगा। 900 हमें 4 मंथ्स के लिए निकालना है। 4 मंथ्स मतलब 4/12 मतलब 1/3। 900 मल्टीप्लाई बाय 1/3, थर्ड पार्ट इज 300, which is equal to 600 900. Total interest on drawings is 900. Total interest on drawings is 900. ठीक है, नेक्स्ट। सो देखो, जब मुझे डेट्स पता है, आई नो द डेट्स, मुझे ये इतना पता है इसकी टोटल ड्राइंग्स 30,000 है। I know A's drawings is 30,000, but I also know the dates of actual drawings. 10,000 9 months के लिए, 5,000 6 months के लिए, 15,000 4 months के लिए, and accordingly मैंने interest calculate किया। When question gives me in detail information, तो मैं interest on drawings particularly calculate करूंगा। Now in case of B, they are not given me the date, कौन से तारीख पे मुझे नहीं पता। If they don't give me the date is mid of the year. In this example, it is 1st October. Assume किया जाएगा 1st October को उसने 50,000 विड्रॉ किए। So interest on drawings of B, आग बंद करके 6 मंथ्स के। अगर डेट्स नहीं दी है तो अच्छी बात है, 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे। डेट्स दिए तो हमें कैलकुलेट करते बैठना पड़ेगा। बी, सो उसकी ड्राइंग 50,000 की है at the rate of 6%, 6 months, this is assumption, 6 months, which is equal to 6% आएगा 3,000 का हाफ, 1,500। So when dates of drawings are not given in the question, we calculate interest on drawings always for how many months? We calculate for 6 months. That is the standard assumption. यहाँ पे मुझे डेट पता है, मैं डेट वाइज कैलकुलेट किया। बी के केस में आई डोंट नो द डेट्स, मैंने 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया। क्यों 6 मंथ्स कैलकुलेट करना है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, राइट? क्यों 6 मंथ्स कैलकुलेट करना है ये लिखा नहीं, वो मैं समझाऊंगा नेक्स्ट एग्जांपल में, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स एंड विड्रॉवल? अच्छा, गुड क्वेश्चन, रियली गुड क्वेश्चन। ड्राइंग्स इज विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट, लिख लेना। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स में डिफरेंस क्या है? विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, दिस इज परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। आप कैपिटल निकाल रहे हो, considered for interest on capital, calculation of interest on capital, and इसकी एंट्री आती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। दिस इज फोर्थ, इज ए नॉन रिकरिंग इन द नेचर। कभी कभार होता है, हार्डली होता है, नॉन रिकरिंग इन द नेचर।
नॉन रिकरिंग ड्रॉइंग्स. व्हाट इज द ड्रॉइंग्स? ये टेक्निकल डिफरेंस है. ये मैं आपको सिखा रहा हूं, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये पता होना चाहिए. आप कॉलेज में भी बोलोगे तो बोलेंगे ड्राइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल एक ही होता है. नो, नॉट एट ऑल, डिफरेंस होता है. ठीक है. ड्राइंग्स इज विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट्स, विड्रॉवल ऑफ और अगेंस्ट द प्रॉफिट्स. मतलब मैं पार्टनर हूं तो मुझे प्रॉफिट में शेयर मिलने वाला है ना. एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मुझे प्रॉफिट में शेयर मिलेगा. मैं बोलता हूं मैं उसके बदले मुझे पैसे दे दो. मैं क्या बोल रहा हूं, एट द एंड ऑफ द ईयर आप मुझे प्रॉफिट में शेयर देने वाले हो ना एवरी ईयर, तो उसका वो जो ईयर के एंड में आप मुझे देने वाले हो ना प्रॉफिट, वो मैं धीरे धीरे विड्रॉ करते रहूंगा बिगिनिंग से. सो विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज विड्रॉवल ऑफ कैपिटल. वो कैपिटल डिक्रीज करता है, परमानेंट इन द नेचर होता है. एंड ड्रॉइंग्स आर आल्सो कॉल्ड एज विड्रॉवल्स ऑफ प्रॉफिट और विड्रॉवल अगेंस्ट द प्रॉफिट. मुझे पता है एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, मेरे कैपिटल में ऐड करने वाले हो, तो तब ऐड करने वाले हो ना, तो मैं बोलता हूँ नेक्स्ट ईयर में विड्रॉ करने की जगह मैं अभी से धीरे धीरे विड्रॉ करता हूँ. ठीक है. विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट्स इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स. दूसरा, not considered for calculation of interest on capital. This is not withdrawal of capital. ड्रॉइंग्स की एंट्री आती है, ड्रॉइंग्स टू कैश. टू कैश. And the last, it is a recurring, most frequent transaction is the drawings. देख लेना डिफरेंस. एंड दिस इज वेरी टेक्निकल डिफरेंस. सो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल एक्चुअली जितना मुझे पता है या जितने मैंने टेक्स्ट बुक इन डिटेल में देखा है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ 12th. बट पता होना चाहिए कि ड्रॉइंग्स एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल अलग अलग होते हैं. ठीक है. आगे ड्रॉइंग्स पे. ठीक है. आगे ड्रॉइंग्स इज ए विड्रॉवल इन एंटिसिपेशन ऑफ द प्रॉफिट. प्रॉफिट मिलेगा तब आप मेरे कैपिटल में ऐड करोगे, वो मैं आज ही विड्रॉ कर रहा हूं. ड्रॉइंग्स इज विड्रॉवल इन एंटिसिपेशन ऑफ द प्रॉफिट. ठीक है. आगे नेक्स्ट. नाउ व्हाई दैट 6 months, इस पे मैं थोड़ा डिस्कशन करता हूं. ठीक है. मैं एग्जांपल देके समझाता हूं. एग्जांपल, ठीक है. एज ड्रॉइंग्स ₹12,000. एक ही साल भर के ड्रॉइंग्स 12,000 है. कैलकुलेट interest on drawings at the rate of 10% per annum. Solution. ए ने 12,000 निकाले, पूरे साल में 12,000 निकाले. कब निकाले? क्वेश्चन इज साइलेंट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक एजम्पशन करके चलता हूं. A withdraws ₹1,000 per month at mid of each month. ऐसे एवरी मंथ, मतलब एग्जांपल अप्रैल, ऐसे ईयर है उसका, उसने अप्रैल के मिड में विड्रॉ किया 1,000, फिर मई के मिड में विड्रॉ किया 1,000, जून के मिड में 1,000, ऐसे उसने 12,000 1,000 1,000 1,000 विड्रॉ किए. 12 1,000 विड्रॉ किए.
15th अप्रैल, 15th मई, 15th जून, 15th जुलाई, 15th अगस्त, 15th सितंबर, 15th अक्टूबर, 15th नवंबर, 15th दिसंबर, 15th जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ऐसे उसने एवरी मंथ मिड ऑफ ईच मंथ 1000 विड्रॉ किया। टोटल 1012 बार, मतलब उसकी ड्रॉइंग्स कितनी हो गए 12000। एवरी मंथ के मिड में ड्रॉइंग्स टू कैश 1000, ड्रॉइंग्स टू कैश 1000, ड्रॉइंग्स टू कैश 1000, ऐसे 12 एंट्रीज आ गए। टोटल ड्रॉइंग्स इज 15,000। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ऐसे मान के चलते हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। सो मैं प्रूव कर रहा हूं क्यों 6 मंथ्स। ध्यान देना, इंटरेस्टिंग है। एंड यू कैन टेल अदर्स योर फ्रेंड्स कि ऐसे भी कुछ होता है। दिस इज अप्रैल, दिस इज मई, सपोज दिस इज जून, यहां पे मार्च खत्म हो गया, ये फरवरी, और बीच में पीरियड है, मैं इग्नोर करता हूं फॉर द टाइम बिंग। अप्रैल, मई, जून, फिर बीच में जुलाई अगस्त वगैरह सब रहेंगे, दिसंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च। रिप्रेजेंटेटिव्स मंथली है। हमने यहां पे कितने निकाले 1000। कब निकाले मिड ऑफ द, मतलब 15th अप्रैल को। फिर हमने नेक्स्ट 1000 कब निकाले 15th मई को। फिर कब निकाले 15th जुलाई को। ये जून होना चाहिए, सॉरी जुलाई नहीं, 15 जून। ऐसे एवरी 15th को हम निकाल रहे हैं। फिर हमने जनवरी में भी निकाले होंगे लाइक 1000, 15th जनवरी को। फरवरी 15 को भी निकाला होगा 1000, मार्च 15 को भी निकाला होगा 1000। बराबर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। कैसे, मैंने बोला है अब नाउ यू नो द डेट्स मिड ऑफ ईच मंथ, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान देना। पहले 1000 पे, अप्रैल के 1000 पे 10% फॉर 15 अप्रैल से मार्च एंड। 15 अप्रैल से मार्च एंड कितने मंथ्स हो गए, 1 अप्रैल से मार्च एंड 12 मंथ। 15 अप्रैल से आगे देखना है, मतलब हाफ मंथ छोड़ दो, फॉर 11.5 मंथ्स। प्लस ये अप्रैल, अप्रैल में जो अपने 15 अप्रैल को 1000 निकाले, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल हाफ मंथ, फिर मई जून जुलाई अगस्त मार्च तक 11 मंथ्स। 11 plus this half. So can I say owner has been using this 1000। 15 अप्रैल पे उसने 1000 निकाले हमसे, 15 अप्रैल से मार्च एंड तक कितने मंथ्स हो गए 11.5। उसने ऐसे 15 मई को भी निकाला। सो 15 मई से ईयर खत्म होने तक उस 1000 पे फॉर 10.5 मंथ्स। अप्रैल पूरा चला गया एंड मई हाफ। 12 मंथ में से 1.5 मंथ चला गया, 12 मंथ्स में से 1.5 चला गया, तो कितने मंथ्स बाकी है 10.5। ऐसे जून में भी आपने 15 जून को विड्रॉ किया, उस पे भी आप इंटरेस्ट लगाओगे 10% फॉर 9.5 मंथ्स। प्लस फिर ऐसे आप जो जुलाई में हुआ होगा उस पे आप 8.5 मंथ्स का लगाओगे, अगस्त वाले पे आप 7.5, सितंबर वाले पे 6.5, अक्टूबर वाले पे 5.5, नवंबर 15 वाला 4.5, दिसंबर 15 वाला 3.5, जनवरी 15 वाला। ऐसे बीच में मैंने डैश डैश दिया, मैं सब नहीं लिखते बैठा हूं, आपको वो इमेजिन होना चाहिए। अब 10% जनवरी 15 को, सो जनवरी 15 से मार्च 15, जनवरी का हाफ, फरवरी पूरा, मार्च पूरा 2.5। आप देखोगे ना बराबर 11.5, 10.5, 9.5, 8.5 ऐसे आगे चल रहा है। प्लस ये मार्च का आ गया, फरवरी का 1000 पे 10% फॉर 1.5 मंथ्स, फरवरी हाफ, मार्च पूरा। प्लस मार्च का जो 1000 है वो 15 दिन के लिए, हाफ मंथ के लिए, 15 मार्च से 31 मार्च हाफ मंथ।
12 ड्रॉइंग्स है, 12 ड्रॉइंग्स पे 12 इंटरेस्ट, 12 बार ड्रॉइंग हुई है, 1000 मिक्स 12,000, मिक्स 12,000 बराबर। तो 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। इतना सब करने से एक शॉर्ट, इसको हम थोड़ा और शॉर्टकट कर सकते हैं। इसको देखो क्या, एवरीवेयर देयर इज समथिंग कॉमन, हर ब्रैकेट से कुछ कॉमन उठाएंगे। 1000 इज कॉमन बराबर। देखो क्या कॉमन है, हर ब्रैकेट में कॉमन क्या है, 1000 मल्टीप्लाई बाय, और एक कॉमन है 10%, और एक कॉमन है 1/12। हर ब्रैकेट में ये तीन चीजें कॉमन है, 1000, 10%, 1/12 मल्टीप्लाई बाय। अब क्या बाकी है, 11.5 प्लस 10.5 प्लस 9.5 प्लस 8.5, 6, 7.5, 6.5, like that, 2.5, 1.5 प्लस 0.5। क्लियर है? सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 1/12। देखते हैं मल्टीप्लाई बाय, इसकी सम कितनी आएगी, एनीवन? 11.5, 0.5 से 11.5 तक कितनी सम आएगी, एनीवन? कितनी सम आएगी, कोई मुझे बोलेगा? एनीवन? गिव इट अ ट्राई। करो एक बार। राइट, ऐसे 0.5 प्लस 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 4.5 अप टू 11.5 कितना आएगा, प्लीज एनीवन? चलो हेल्प करो मुझे। 72 आ रहा है, कितना आ रहा है, 72। अच्छा गुड, 72 परफेक्ट है आपका आंसर। ध्यान देना, 72 ब्रैकेट में 72 है। नाउ कैन आई राइट 72 लाइक दिस? 72 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? कितने टाइम्स ड्रॉइंग्स है, 12 टाइम्स है, सो कैन आई राइट 12 मल्टीप्लाई बाय 6? 72 को 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कर सकता हूं क्या, क्यों नहीं? 12 बार ड्रॉइंग्स है तो मैंने उसको 12 के फ्रैक्शन में लिखा, 12 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको थोड़ा रीशफल करते हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 साथ में लिखा, ये दोनों साथ में लिखे, 10%, 6/12। ये आ गया शॉर्टकट, ये आ गया शॉर्टकट। क्या मिल गया आपको, देखो ये आपका शॉर्टकट है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। तो कहने से इट इज नथिंग बट 12,000 पूरे साल की ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट फॉर 6 मंथ्स। आ गए क्या 6 मंथ्स अपने आप? देयरफॉर वी टेक 6 मंथ्स। सो इतना सब करने से इसका शॉर्टकट आता है 6 मंथ्स। इसलिए टेक्स्ट बुक में लिखा है इट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स, बट जिसने लिखा उसको भी नहीं पता होगा 6 मंथ्स कैसे आया होगा। अगर झूठ लगता है तो कॉलेज टीचर से पूछो, मैडम 6 मंथ्स कैसे लेना है, क्यों 6 मंथ्स लेना है? इफ दे कैन गिव द आंसर मैं मान लूंगा। ट्राई करो एक बार, ऐसे प्यार से पूछने का, मैडम एक चीज पूछनी है आपसे। बोलेगी क्या? तो बोलने का मैडम सर जो भी रहेंगे, बोले मैडम 6 मंथ्स ही क्यों लेना है, 8 मंथ्स क्यों नहीं लेना है, 5 मंथ्स क्यों नहीं लेना है, पूछो ना एक बार। वो बोलेंगे हम 1 अक्टूबर को मानते हैं। मैडम उसको 6 मंथ्स का कुछ प्रूफ है क्या? पूछ के देखो, अगर आंसर मिला तो अच्छी बात है, दिस इज द आंसर। सो इसका शॉर्टकट क्या, मैं ये इसको बोलता हूं ईयरली ड्रॉइंग्स। यस, दिस इज ईयरली ड्रॉइंग्स। इतना सब करने से ईयरली ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट, मल्टीप्लाई बाय रट्टा, 6 मंथ्स याद रखना है, डिवाइड बाय 12। ठीक है, दिस कैन बी वन एजम्पशन। एक एजम्पशन समझा मैंने कि हर मंथ के मिड में हमने पैसे विड्रॉ किए, दैट कैन बी वन एजम्पशन। अब दूसरा एजम्पशन, फिर भी आंसर यही आना चाहिए। कितना आंसर आ रहा है निकालो रे। 12,000 का 10%, 1,200, 6 मंथ्स का आएगा 600। आंसर इज 600।
इसलिए बोलते हैं इफ यू डोंट नो द डेट्स टेक 6 मंथ्स। अरे क्यों 6 मंथ्स लेने? बिकॉज हम ऐसे मानते कि एवरी मंथ के मिड में हम इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, ये एजम्पशन होता है। दूसरा एजम्पशन ध्यान देना, मैं फिर से दूसरे एजम्पशन से भी प्रूव करके दिखाता हूं। इट इज 6 मंथ्स ओनली एजम्पशन। I will assume rupees 3,000 has been withdrawn per quarter। 12,000 निकालने हैं ना मुझे टोटल, इक्वल इंटरवल। सो क्वार्टर 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 ऐसे 4 इंटरवल्स हो जाएंगे। withdrawn at the mid of each quarter। मतलब कैसे? ये आपका ईयर है, अप्रैल से मार्च। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से जून, सेकंड क्वार्टर जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर एंड। थर्ड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। सो हम मानेंगे मिड ऑफ ईच क्वार्टर। अब हम क्या मानेंगे? हम 3 ही बार पैसे निकालेंगे, 12 बार नहीं, 3 ही बार निकालेंगे। यहां पे 3,000 निकालेंगे, यहां पे 3,000 निकालेंगे, यहां पे 3,000 निकाल सकते हैं, और यहां पे 3,000, ऐसे 12,000 निकल गए। देखते हैं, ठीक है। अब ये कौन से तारीख पे रहेगा? मिड ऑफ ईच क्वार्टर। अप्रैल मई जून, उसका मिड। अप्रैल भी नहीं, जून भी नहीं, 15 मई, ये तारीख रहेगी 15 मई। 15 मई को 3,000 निकाले, फिर 15 अगस्त को 3,000 निकाले, फिर 15 नवंबर को 3,000 निकाले, एंड 15 फरवरी को 3,000 निकाले। ऐसे इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल में ड्रॉइंग्स की है, इक्वल अमाउंट मिड ऑफ इक्वल इंटरवल ड्रॉइंग्स की है। 3 3 3 3 12,000 टोटल। अब इंटरेस्ट ध्यान देना, जो 15 मई को विड्रॉ हुआ है उस पे 3,000 पे एट द रेट ऑफ 10%। कब से कब तक? 15 मई से मार्च एंड तक। सो फॉर 1.5 मंथ हो चुका है ना, अप्रैल पूरा हो चुका है, मई हाफ हो चुका है, मतलब 10.5 मंथ्स। बाकी कितने मंथ्स है? 1.5 ईयर हो चुका है, तो अभी कितने बाकी है? 10.5 प्लस ये कौन सा आ गया आपका? जो 15 मई को ड्रॉइंग्स है, फिर 15 अगस्त को है, उस पे 3,000 पे 10%। 15 अगस्त से दिसंबर तक, सॉरी जनवरी तक, जनवरी बोल रहा हूं, मार्च एंड तक, 15 अगस्त से मार्च एंड। अगस्त हाफ, अगस्त हाफ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स, सॉरी 7 मंथ्स प्लस हाफ 7.5। अगस्त हाफ, सितंबर पूरा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 months from October, half month of August, total 7.5। सिमिलरली प्लस 15 नवंबर से ईयर एंड तक 3,000 पे 10%। नवंबर हाफ, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4.5 मंथ, प्लस यहां से 15 फरवरी से 15 मार्च लास्ट 3,000 का लास्ट विड्रॉवल फॉर 1.5 मंथ, फरवरी हाफ, मार्च पूरा। कोई ऐसे भी मान सकता कि 3,000 निकाले उसने, टोटल 12,000 ड्रॉइंग्स करनी है ना। सो नाउ फाइंड आउट कॉमन। 3,000 इज ए कॉमन, 10% is common, 1/12 is common,
into bracket 10.5 plus 7.5 plus 4.5 plus 1.5 कितना आएगा बोलो? 10.5 plus 7.5 18 18 4.5 22.5 plus 1.5 24 आ रहा है. कितना आ रहा है सम टोटल? 24. देखो ना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं. 1/12 मल्टीप्लाई बाय 24. देखते हैं जरा 24 को स्प्लिट करके लिखेंगे. हाउ कैन आई राइट 24? हाउ कैन आई राइट 24? मुझे किसमें स्प्लिट करता हूं? नंबर ऑफ ड्राइंग्स में स्प्लिट करता हूं. 4 ड्राइंग्स है तो मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6. यहां पे मैंने जो सम आई थी 72 ऊपर 72 को मैंने किस में स्प्लिट किया? नंबर ऑफ ड्राइंग्स. 12 ड्राइंग्स थे उसमें तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6. यहाँ पे कितने ड्राइंग्स थे? 4 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6. अब इसको रिशफल करके लिखो 3000 मल्टीप्लाई बाय 4. 4 टाइम्स 3000 निकाले. 4 टाइम्स 3000 निकाले मतलब 12,000 निकाले पूरे साल में. रेट 10%. 6/12 that is 12,000 multiply by 10% for 6 months. ऊपर क्या आंसर आया था देखो. ऊपर भी वही था ना 12,000 at the rate of 10% for 6 months. यहाँ पे भी क्या आ गया 12,000 at the rate of 10% for 6 months. Answer is 300 600. 6 months ही आ गया. So this is the proof why we take 6 months. We assume the amount has been drawn at the mid of each interval. It can be कोई ऐसे बोल सकता है सर हम 2000 2006 टाइम्स निकालेंगे. मैं बोलता हूं चलेगा. 2000 मतलब अप्रैल मई में एक बार निकालोगे 2000, जून जुलाई में एक बार निकालोगे 2000, ऐसे 6 टाइम्स निकालोगे. एंड कब निकालोगे? मिड ऑफ दैट. अप्रैल और मई का मिड 30th अप्रैल. जून एंड जुलाई का मिड 30th जून. लाइक ऐसे आप निकालोगे. फिर भी आप निकाल लोगे ना तो भी आपको आंसर यही आएगा. इट्स योर चॉइस. सो व्हाई 6 मंथ्स? प्रूफ है. नो वन विल आस्क यू प्रूफ बट यू मस्ट नो व्हाई इट इज 6 मंथ्स. क्यों 6 मंथ्स है ये तो पता होना चाहिए. ठीक है. एंड दिस इज द आंसर. इसलिए यहां पे मैंने लिखा इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन, if dates of drawings are not given, then interest on drawings is always calculated for how many months? 6 months. This is a standard assumption. Now what is the entry? ठीक है. हमने यहां पे एंट्री लिखते हैं. ठीक है. क्या एंट्री आती है? ड्राइंग्स वो हमारे पैसे यूज कर रहा है. वो हमारे पैसे यूज कर रहा है तो हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे. फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट. फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग्स. इनकम ऑफ द फर्म. इसलिए क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. जो भी अमाउंट रहेगी वो. Credit. Incomes are credited. Interest on capital is expense. Why? Because capital is a liability और liability का interest expense रहेगा. Interest on drawings is income. क्यों? Because वो हमारा पैसा यूज कर रहा है इसलिए हम उसको इंटरेस्ट लगा रहे हैं. हमारा गेन रहेगा. Exactly opposite. Capital is opposite of drawings. So interest on capital भी drawings, interest on drawings के opposite रहेगा. एंड ये हम पार्टनर से रिकवर करेंगे. कैश नहीं लेंगे, उसके कैपिटल से माइनस करेंगे. इसलिए डेबिट होता है कैपिटल अकाउंट. Capital account debit to interest on drawings. And being interest on drawings, nominal account, income account, ये P&L को ट्रांसफर किया जाएगा तो इसको क्रेडिट है. इसको ट्रांसफर करने के लिए इसको डेबिट करना होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आगे इफेक्ट, एंड देयरफॉर फाइनल अकाउंट्स में लिख लेना इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट. हर क्वेश्चन में यू विल फाइंड द एडजस्टमेंट, ईच क्वेश्चन में यू विल फाइंड सच एडजस्टमेंट्स. कैपिटल डेबिट हुआ, कैपिटल डेबिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट होता है बट डेबिट हुआ है. देखो अगर आपको कंबाइन एंट्री दिखती है तो कोई बोलेगा सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट है, कैंसिल हो गया, तो नेट एंट्री क्या बची है? कैपिटल टू पी एंड एल. कैपिटल को डेबिट है मतलब कैपिटल से माइनस करना है, समझ में आ रहा है? कैपिटल क्रेडिट होता है, अगर ऐड करना है तो क्रेडिट करो, माइनस करना है तो डेबिट करो, तो कैपिटल से माइनस होगा. लिखो फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया जाएगा, अकाउंट क्रेडिट, दैट इज एड इन इनकम. एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट होना चाहिए, बराबर. सेकंड कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, कैपिटल को डेबिट मतलब डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल. डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, लिखो दिस इज इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट, इसको वीआईएमपी मार्क करके रखना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के अपोजिट इफेक्ट है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है? इनकम, तो पीएनएल के क्रेडिट में और फिर कैपिटल से माइनस. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उल्टा, पीएनएल डेबिट एंड राइट, एक सेकंड, एंड कैपिटल क्रेडिट. यस प्लीज, हाँ पलकेश बोल. पलकेश, अच्छा ठीक है, ठीक है. सो एनी डाउट अभी तक किसके डाउट्स? ठीक है. सो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पी एंड एल एक्सपेंस में ऐड करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? इनकम में ऐड करेंगे और कैपिटल से माइनस करेंगे. नेक्स्ट लेट्स सी. ठीक है, आगे एग्जाम्पल. ए एंड बी, 3:2 पार्टनर्स है, पीएसआर 3:2. ठीक है, 5 रुपए प्रॉफिट, 3 ए को 2 बी को, कैपिटल्स एज ऑन. $6 lakhs, $4 lakhs. मैं कुछ भी एग्जांपल्स लेता हूं जो मुझे मेरे मन में आए. ठीक है, 6 lakhs, 4 lakhs. फिर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ए एंड बी, एडिशनल कैपिटल introduced. A on 1st October 19, 2 lakhs. B on 1st January 20, 3 lakhs. ठीक है. प्रॉफिट बिफोर मतलब ये, बिफोर मतलब पहले,
interest on capital at the rate of 12% per annum and interest on drawings at the rate of 10% per annum is 8 lakhs. This is the example. लिखो. Find out A, interest on capital. B, interest on drawings. C, actual profit. Correct profit. Correct profit. ये जो 8 लाख है ना, this is without, before interest on capital and interest on drawings. So ये 8 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होना बाकी है, माइनस करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड होना बाकी है, ऐड करेंगे, और फिर हमें पता चलेगा फाइनल प्रॉफिट, जो हम पार्टनर्स को कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:2, एंड देन फाइंड आउट द कैपिटल. 3 चीजें ढूंढनी है. ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. एंड सी, कैपिटल. चलो साथ में सॉल्व करते हैं सब लोग. सॉल्यूशन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. A and B on opening capital. $6 lakhs, 4 lakhs. लिखते चलो मेरे साथ, लिखते चलो, रुकना नहीं. एंड गवर्नमेंट has said 31 जुलाई तक कुछ होगा नहीं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब कॉलेज वगैरह स्टार्ट नहीं होगा. सो टेक ईच एंड एवरी लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट. 2 घंटे आपके दिन में से चाहिए. अगर वो 2 घंटे भी आप सिंसियरली नहीं करते तो आप किस लिए जी रहे हो, यही समझ में नहीं आता. अगर 2 घंटे भी आप बाकी सब चीजों से दूर होकर लेक्चर के लिए शांत नहीं बैठ सकते तो फिर मतलब पर्पस क्या है आपके लाइफ का. इसलिए जब 2 घंटे होता है ना, 2 घंटे में करो, ठीक से करो, सिंसियरली करो. मैं बोलता हूँ घर पे भी फिर करने की जरूरत नहीं होगी. 6 lakhs पे और 2 घंटे, एक्चुअली हम बोलते हैं 2 घंटे, बट वो उतना इफेक्टिवली 2 घंटे होता भी नहीं. सो इट लाइक्स आप 120 मिनट्स में से 100 मिनट्स तो इफेक्टिवली होता है. उतना भी आप शांत नहीं बैठ सकते. कोई मोबाइल में खेलता है, कोई इधर उधर, ऐसे मत करते जाओ. कैसे कि 2 घंटे 24 आवर्स में से 2 आवर्स इज नथिंग. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से 12 मंथ्स, इसका रहेगा 72,000. बी का कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना है बी का, इसका निकाल लिया, इसका 4 लाख है. ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा 12 मंथ्स का, ये 48,000 ऑन एडिशनल कैपिटल ऐड होगा ना. एडिशनल कैपिटल दिया है उन्होंने हमें. ए ने 1 अक्टूबर को, बी ने 1 जनवरी को. 2 lakhs एंड 3 lakhs. ए का 2 लाख एडिशनल है, बी का 3 लाख एडिशनल है. दे हैव गिवन यू रेट 12%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%. इस पे 6 मंथ्स का, अक्टूबर 1 अक्टूबर से दिसंबर 6 मंथ्स, इसका जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स. 24,000 पूरे साल का आएगा 2 lakhs पे. 24,000 पूरे साल का आएगा, हाफ ईयर का रहेगा 12,000. इसका 36,000 पूरे साल का आएगा. 36 का 1/4 चाहिए. 3/12 इज 1/4, 9,000. ड्रॉइंग्स पे, ड्रॉइंग्स इज नॉट कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स पे अलग इंटरेस्ट. सो ये आ गया आपका 84,000. ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, बोलेंगे भाई तेरा पहले 6 लाख कैपिटल था, तूने 2 लाख और डाला, तेरा टोटल कैपिटल 8 lakhs हो गया,
उसका ओवरऑल इंटरेस्ट 84,000 है, ए ले ले इंटरेस्ट, तेरे कैपिटल में ऐड करेंगे। बी को बोलेंगे 48,000 प्लस 9,000, 57,000 तेरा इंटरेस्ट है। हमें उनको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है। एड इन एक्सपेंस, एड इन कैपिटल। नेक्स्ट, सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए का कितना और बी का कितना? कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डोंट मिक्स देम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% है, एंड उन्होंने बोला है डेट्स आर नॉट गिवन, तो मैंने क्या समझा 6 मंथ्स के लिए 80 एंड 40। ए के ड्रॉइंग्स 80 है, बी के ड्रॉइंग्स 40 है, at the rate of 10%. And if nothing is given, we always consider them for 6 months. So that will be 80,000 का 10% 8,000, हाफ ईयर का 4,000, 40,000 का 10% 4,000, हाफ ईयर का 2,000। ए से लेंगे 4,000, क्यों लेंगे? बिकॉज वो हमारे पैसे यूज कर रहा है, उससे लेंगे, उसके कैपिटल से माइनस करेंगे, हमारा गेन होगा। बी से लेंगे 2,000, ठीक है। देयरफॉर फाइनल प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर, बिफोर मतलब ये होने के पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। 8 लाख दिया था क्वेश्चन में मैंने, आई रिमेंबर द वैल्यू, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किए बिना है, अब हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। विच इज ओवरऑल कितना है 84 प्लस 57, 1,50,000, 1,62,000 है शायद से वो, 84 प्लस 84,000 प्लस 57,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1,30,000 प्लस 11, 1,41,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, इसलिए प्रॉफिट अब कम होगा। कितने से कम होगा 1,41,000, सो 7 लाख 6,59,000। एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम होता है, गेन होता है, गेन। ए एंड बी का मिला के कितना है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6,000। फर्म का गेन होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसलिए प्रॉफिट में ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, इसलिए प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस होना चाहिए, एंड आपने वो नहीं किया था, उसके बिना प्रॉफिट देता हम उसको करेक्ट कर रहे हैं। सो ऐड होने के बाद दिस इज 6,65,000। दिस इज प्रॉफिट्स आफ्टर, आफ्टर मतलब वो होने के बाद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, देयरफॉर फाइनल कैपिटल A, B, ओपनिंग कैपिटल दे हैव गिवन अस। कितना कैपिटल है? A का कैपिटल है 6 लाख, B का कैपिटल है 4 लाख। एडिशनल कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा। ए ने कितना डाला, बी ने कितना डाला? ए ने 2 लाख, बी ने 3 लाख। एडिशनल कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा। अब भी फिलहाल कैपिटल दिख रहा है
8 lakhs and 7 lakhs. अच्छा, फिर ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल माइनस होता है, करो ड्राइंग्स माइनस। और उन्होंने हमें ड्राइंग्स दी है, ए के 80,000 थे, बी के 40,000 थे। So now their capital is 7,20,000 and 6,60,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है। हम एक्सपेंस में ऐड करके कैपिटल में ऐड करते, तो ऐड करो। ए को कितना इंटरेस्ट देना है? ए को देना है उसके कैपिटल पे 84,000, बी को देना है 57,000। इतनी बार प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, बट मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं। दिस विल बी 7,97,000, 8,07,000। दिस विल बी 7,17,000। यस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल माइनस, ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से भी कैपिटल माइनस होगा। कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा। ऐसे भी कोई याद रख सकता है। विच इज 4,000, 2,000। एक एक कैपिटल से 4,000 निकालेंगे, क्यों? बिकॉज उसने ड्राइंग्स किए तो उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। इसके कैपिटल से 2,000 निकालेंगे। इतनी बार प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही साथ लिख सकते थे, बट मैं कर रहा हूं 8 लाख। वो मुझे एक एक चीज समझाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। 3,000, इसका है 7,15,000। एंड प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है, शेयर इन द प्रॉफिट। हाँ, देखते हैं शेयर इन द प्रॉफिट। कितने प्रॉफिट थे? 6,65,000। This is in the ratio of 3:2. 6,65,000 in the ratio of 3:2. Which is 3,99,000. $2,66,000। जो प्रॉफिट बचा है, जो प्रॉफिट बचा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 84,000 है, 87। मैंने कितना लिया है? अच्छा, 87 लिया है क्या? ठीक है, 84 था। सो 84 ऐड हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, तो ये 8 लाख आ जाएगा। ठीक है, 4, 10, ठीक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, शेयर इन द प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? ए का कितना है? 3,99,000। बी का कितना प्रॉफिट है? 2,66,000। Therefore, final capital $11,99,000 $10,81,000। चेक करो अब कैलकुलेशन बराबर है क्या? कोई वैल्यू गलती से इधर की उधर नहीं लिखी ना? 9,81,000 आ रहा है, मेरा क्यों ज्यादा आ रहा है फिर? अच्छा, 10 वो कैरी फॉरवर्ड नहीं है, 11 1 कैरीड 8, ओके, 9,81,000, परफेक्ट, गुड। ए का, ठीक है। दिस इज द वे यू फाइंड आउट द कैपिटल्स। हमने 11th में किया है। 11th में हमने क्या किया था? हम प्रॉफिट ऐड करते थे, एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे, ड्राइंग्स माइनस करते थे, ये तो हमें पता है। ओपनिंग कैपिटल में हम एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे, ड्राइंग्स माइनस करते थे और प्रॉफिट ऐड करते थे, ये हमें पता है, ये तो कुछ अलग नहीं है।
अब दो एडिशनल आइटम्स आ गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस होगा एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस होगा. दीज आर न्यू आइटम्स. ये 12th की एंट्री है. 12th में यू हैव टू, ये आपके लिए नए आइटम्स आ गए. दिस इज न्यू एंट्री इन द 12th. ये 11th में नहीं थे, 12th में है ये दो आइटम्स. सो हमें पता है कैपिटल कैसे ढूंढते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट. ये तो सबको पता है. उसके बियॉन्ड अब आज क्या सीखा हमने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स के साथ कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा. दैट्स इट. अब मैंने इतने प्लस माइनस इतने बार किया, यू कैन डायरेक्टली डू इट. ठीक है. किसी के डाउट? इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी. ओके, आई डिड इट. ठीक है. नेक्स्ट. ठीक है. सो आज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन समझा, और ये जो भी मैं चीजें सिखा रहा हूं दीज आर लॉन्ग टर्म. ये हर क्वेश्चन में हर चैप्टर ऑफ 12th पार्टनरशिप से ही भरा है. फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, 5 चैप्टर में ये दोनों लगेंगे. 5 चैप्टर में यही करना है. एक एडजस्टमेंट दी होगी, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इसलिए इस पे एक्सपर्टाइज इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो ठीक है. 5:30 हुए, मेरा एक नेक्स्ट लेक्चर है अभी 5:45 को, तो 10 मिनट का तो ब्रेक चाहिए मुझे. ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज लेक्चर. कल आपका मैथ्स होगा, परसों मेरा रहेगा. ठीक है. अब अगर आपके कॉलेज के टाइम्स फाइनल हुए हैं तो प्लीज पिंग मी. ठीक है. क्या टाइम्स फाइनल है, क्योंकि कोई लोगों का अलग भी टाइमिंग आ रहा है, इससे मुझे पता चला रिसेंटली. तो मुझे खाली पर्सनल चैट पे ये करो. आज इवनिंग में आई विल ऑल्सो एड लाइक 12th के बैचेस ऐप पे मैं कर दूंगा. ठीक है. आज मैं शाम को बैठ के वो कर दूंगा. मैंने फाउंडेशन का किया है, कोई बच्चों के रिक्वेस्ट है वो मैंने अभी तक वहां पे एक्सेप्ट नहीं किए, वो मैं करूंगा. एंड 12th के अकाउंट्स, 12th की मैथ्स, इको एंड ओसीएम, चारों के अलग अलग बैचेस क्रिएट होंगे. देखो, जो बच्चा जिस बैच में ऐड है उसको वही दिखेगा. लाइक एग्जांपल, कोई मैथ्स के इसमें ऐड है तो उसको खाली मैथ्स का दिखेगा. अगर कोई अकाउंट के इसमें ऐड है तो उसको खाली अकाउंट्स का दिखेगा. जो दोनों बैच में ऐड है तो उसको दोनों दिखेंगे. समझा? ऐसे होता है. ठीक है. वो मैं इवनिंग में करवा दूंगा. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन. सब पास है. ठीक है. इतने दिन क्यों उन्होंने टाइम लगाया पता नहीं. ठीक है. वाडिया के सब पास हो गए, अच्छी बात है. नहीं, तुम लोग मार्क्स भी अच्छे लाते हैं अकाउंट्स में. आई नो द वे यू हैव पुट एफर्ट्स इन लास्ट जनवरी फरवरी में, बहुत अच्छे एफर्ट डाले थे हम लोगों ने. सो देयर इज नो डाउट. लाइक फाइनल अकाउंट्स वगैरह बहुत अच्छे से किया था. तो मुझे नहीं लगता कि मार्क्स, अच्छे मार्क्स आते हैं. एटलीस्ट अकाउंट्स वगैरह उसमें तो अच्छे मार्क्स आते हैं. ठीक है. रक्षण खुश है, पास हो गया, अब घर से गालियां नहीं पड़ेगी. चलो रुकते हैं आज. थैंक यू.